on behalf of Ideal Institute of Commerce and Genius School. Right now I'm taking the class of 11th standard, the subject accountancy and the chapter number 3rd, general. As we discussed in the previous lecture, we talked about the basic terminologies of the accounts like capital, drawing, goods, purchase, sales, discounts. And in the another part we discussed or deeply we talked on the types of accounts, the real, personal, nominal, and the rules of real account, debit and credit, rules of debit and credit in real account, personal account and nominal account. Now, in the 3rd chapter, the journal, I taught you the journal is the original book where the firstly transaction recorded. Only the financial transaction of the business, केवल financial transaction record होते हैं. जर्नल एक ऐसी original book है, पहली book है और ये एक brief explanation देता है किसी भी organization या किसी भी business के transactions का. I discussed on the format of journal, date particular, if you remember, date particular, LF and the amount column, debit and credit. Now we are just trying or making you understand हाउ द जर्नल प्रिपेयर, जर्नल कैसे बनाई जाती है, कैसे उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड इन आई थिंक जस्ट प्रीवियस लेक्चर आई टुक सम एग्जांपल्स ऑफ 4 and 5 and make you understand how we put the transactions in the journal book. Today we are discussing on the combined journal entries. I wrote here, when 2 or more accounts are associated for transaction, in such case combined journal entry can be passed. जब किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हुए दिख रहे हैं या 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हुए दिख रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो वो combined journal entry कहलाती है. अभी तक we discussed only on the single entry when there is only one account debited and one account credited in each transaction. एक ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट डेबिट होता था और एक अकाउंट क्रेडिट होता था. But now we are discussing when in a one transaction, in a single transaction, एक ही ट्रांजेक्शन में more than 2 accounts are debited or 2 or more than 2 accounts are credited. Got it? That is called the combined journal entry. I took the 2 examples to make you understand what is the meaning of combined journal entry and how we solve it and put it into the journal book. Here I mentioned one example. On 15th January 2019, for wages rupees 300, salary rupees 2000 and for telephone bill rupees 500 are paid in cash. एक बिजनेस है जिसने 300 रुपीज तो वेजेस के पे किए हैं, 15 जनवरी को ही पे किए हैं सारे एक्सपेंसेस, सैलरी 2000 रुपीज पे की है और टेलीफोन बिल 500 रुपीज पे किया है कैश में. अब देखिए यहाँ पे मेजरली कितने अकाउंट्स निकल के आ रहे हैं. एक वेजेस अकाउंट, नाउ सेकेंड द सैलरी अकाउंट, third telephone bill expenses account, got it, and fourth cash account. Got it? First wages, salary, telephone bill and cash. Now put it here. Wages account, salary account, telephone bill account, telephone expenses account and cash account. I mentioned here 4 accounts which I took from my transaction. Wages is the expenses, it is the nominal account. Salary is also the expenses, it is nominal account. The nature, we are identifying the nature of account. Telephone expenses is also the expenses of the business, so it is the nominal nature. And the cash is real account. Got it? If you remember the rules of debit and credit in nominal account, debit all the expenses, credit all the incomes, and please mention wages, salary and telephone bill is the expenses of the business. So wages is debited, salary account is debited, telephone account is expenses account is debited, cash is the real account. Real
debit what comes into the business, credit was goods out from the business. When we are paying the expenses, our cash is going out from the business. हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, तो मीन्स कैश अकाउंट क्रेडिट. नाउ आइडेंटिफाई इफ वन ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन में देखो एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो ये कंबाइंड जनरल एंट्री कहलाती है. ठीक है, अब इसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे? 1 2 3. अगर मैं इसकी सिंगल एंट्री बनाऊं, इफ आई मेड इट सिंगल एंट्री, सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट है, ओनली कैश अकाउंट, केवल एक अकाउंट है जो क्रेडिट हो रहा है. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट मेक्स माय जनरल एंट्री मोर यू कैन से ब्रीफली, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर अगर मैं इसे शॉर्ट में सम अप करके लिख सकती हूँ इजीली, बट कंडीशन इज देयर इट शुड बी ऑन वन डेट, एक ही डेट पे होना चाहिए. अगर किसी भी एक्सपेंस की डेट चेंज हो जाती है तो उस केस में आप उसे सम अप करके नहीं लिख सकती हो, क्योंकि जनरल बुक डेट वाइज रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है, दे ऑल ट्रांजेक्शंस आर मेड ऑन 15th जनवरी 2019. सो केवल एक डेट पे ये सारे ट्रांजेक्शंस हुए हैं, इसलिए इसे सम अप किया जा रहा है. So now see the general wages account debit, salary account debit, telephone bill expenses account debit. Debit की जगह डेबिट के कॉलम में अमाउंट, wages 300, salary 2000, telephone expenses 500. अब देखिए कितना आपका पेमेंट जा रहा है. 300 for wages, 2000 for salary, 2300 हो गया, उसमें 500 और ऐड कर दीजिए 2800. तो कैश अकाउंट आपका टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, टोटल 2800 का पेमेंट हो रहा है. गॉट इट. नीचे नरेशन दिया हुआ है. नरेशन मींस जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया है उसको समरी फॉर्म में लिखना है, और अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं तो हम यहीं से उठा करके लिख देंगे. बीइंग फॉर वेजेस ₹300, फॉर सैलरी ₹2000 एंड फॉर टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस ₹500 आर पेड इन कैश. वो का वो ट्रांजैक्शन आप नरेशन के फॉर्म में लिख दीजिए. गॉट इट. तो ये है कंबाइंड एंट्री का सैंपल आपके सामने. नाउ आई टुक आल्सो वन एग्जांपल. द सेकंड एग्जांपल, राज कमेंस अ बिजनेस विद कैश ₹20,000. एक बिजनेस कमेंस कर रहा है, राज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. जैसे ही आई टोल्ड अ बिजनेस स्टार्टेड मीन्स आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ कैपिटल जरूर होगा, और जहां पर भी कैपिटल होगा मीन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पोजीशन पर होगा. कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है. इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लिंक करना सीखिए आप. ठीक है, कैश 20,000 रुपीज लगाए, मशीनरी लगाई, एक असेट लगाया 10,000 का, कुछ स्टॉक उसके पास पड़ा था 15,000 का. इन सबको रखकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है. ठीक है, अब कितने अकाउंट इसमें निकल करके आ रहे हैं? फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड मशीनरी अकाउंट, थर्ड स्टॉक अकाउंट, और बिजनेस जब भी कमेंस करते हैं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती है. चाहे आप कैपिटल कैश फॉर्म में लगाओ, किसी असेट फॉर्म में लगाओ, वो सब कैपिटल में ही काउंट होती है. ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, मशीनरी रियल अकाउंट है, स्टॉक रियल अकाउंट है, और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. और बिजनेस सेटअप करने के लिए कैश, मशीन, स्टॉक बिजनेस में लाए जा रहे हैं. मींस कैश भी डेबिट, मशीन भी डेबिट, स्टॉक भी डेबिट. गॉट इट. अगर मैं इसकी सिंगल एंट्री बनाऊं तो कैश डेबिट किसके लिए? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लगता है, कैपिटल क्रेडिट है टू कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब तीन, क्योंकि एक ही डेट का ट्रांजैक्शन है, तीन अलग अलग एंट्री करने से एक कंबाइंड एंट्री की जाएगी. कैश डेबिट, मशीन डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैश डेबिट, मशीन डेबिट, स्टॉक डेबिट. सब में कैपिटल कॉमन है और कैपिटल क्रेडिट पोजीशन पे है, तो कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया. प्लीज नोट डाउन, क्रेडिट जो भी आइटम होता है उसके आगे टू लगता है और थोड़ा सा स्पेस रख करके लिखा जाता है. नाउ पुट द अमाउंट. कैश 20,000, मशीनरी 10,000, स्टॉक 15,000.
तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 20 plus 10 30, 30 plus 15 45,000. So narration you can take from here also. Being Raj commenced a business with cash rupees 20,000, machinery rupees 10,000 and stock rupees 15,000. So it is the example of combined journal entry. Definitely we will make the practice in further classes. Okay, thank you dear.